Hello, welcome to my dear students. Now, today is the last portion of our tense topic. Okay, आज हमारे tense का last topic है. Then we go for the next topic of the English grammar. Okay. Now, as we in the previous video session we learned about the future tense, and in which we have discussed about the two tenses: the future indefinite tense and second was the future continuous tense. Now, there is a third portion of the future tense, the future perfect tense, and simply whenever we see perfect in any of the sentence in individual form, जब कभी भी हम किसी टेंस के अंदर इंडिविजुअल फॉर्म में अकेले रूप में सिर्फ परफेक्ट को देखते हैं, वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. आई रिपीटेड मैनी टाइम्स एंड दिस इज द लास्ट टाइम. ओके, इसी तरीके से जैसे फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी, पास्ट परफेक्ट के अंदर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, एंड देन फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. मींस सिंपली वी कैन से दैट there are the three tenses in English grammar where we use verb third form. Okay, now as usual we have repeated many times, and this will be identity, how we identify the sentence at the last of the sentence formation. Okay, at the last of the sentence we see that how, okay, here is the sentence, गीता अपने ऑफिस जा चुकी होगी. Okay, look at the last portion. I told you last portion में हमने देखा कि चुकी होगी. Okay, होगी represent the future tense. Okay, but here is चुकी mentioned that is a future perfect tense. Okay, future perfect tense. जिस तरीके से हमने present indefinite के अंदर चुका है पढ़ा था, past perfect के अंदर हमने पढ़ा चुका था, इसी तरीके से हम future perfect के अंदर पढ़ेंगे चुका होगा. Okay, now गीता अपने ऑफिस जा चुकी होगी. as the last portion we identified that चुकी होगी means it's a present or future perfect tense. Okay, गीता अपने स्कूल means this is affirmative sense. Now how we use and how we translate these words according to English grammar as per the rule. Okay, affirmative के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. affirmative में हमने यहाँ देखा है subject, firstly गीता is your subject, then helping verb will have. Okay, I told you will have been used, okay, for the pronoun for the other subject except I और V. I और V को छोड़ के जितने भी हमारे subjects होंगे उसके लिए हम will का यूज करेंगे. Okay, will have reached her office, the third form of reach, her office. Okay, now convert in the sentences into different form like negative. गीता अपने ऑफिस नहीं जा चुकी होगी. Very simply. Okay, गीता will have not reached her office. Okay, then we go for the interrogative. Interrogative means there is a questioning. Here we use क्या गीता अपने ऑफिस जा चुकी होगी, and last one sign of interrogation. Then we use the helping verb. Then will is used at the starting. Will Geeta have reached her office? Okay, overall you can see that they are the same symmetry of the sentence formation. आप हर tense के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब में सेम सिमेट्री है, ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं. Okay, then the last portion interrogative plus negative. here क्या गीता अपने ऑफिस नहीं जा चुकी होगी. ओके, दिस इज टाइम ऑफ ए प्रिडिक्शन. हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो अभी ऑफिस नहीं जा चुकी होगी. ओके, देन विल गीता हैव नॉट रीच्ड हर ऑफिस. ओके, दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बट along with that there are some other categories. Okay, some other categories and some sentence formation as we discussed in past perfect tense के अंदर भी हमने पढ़ा था. मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं बेटा. past perfect tense के अंदर हमने फॉर्मेशन तो पढ़ा था, उसके साथ हमने कुछ चीजें समझी थी कि जिसमें दो सेंटेंसेस को कंप्लीट किया जाता है. जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो वहां पे हमने क्या किया था, जो एक्शन फर्स्ट एक्शन था उसको हमने पास्ट परफेक्ट में रखा था और सेकेंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में रखा था. इसी तरीके से हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. दो सेंटेंस को एक्युमुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है. तो वहां पे मैं किस चीज का ध्यान रखना है, फर्स्टली वी गो फॉर द सेंटेंस. पहले हम सेंटेंस को देखते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट दैट. ओके, लुक एट द सेंटेंस इन योर स्क्रीन. उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा. ओके, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका हूंगा. तो इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टू सेंटेंस. दो सेंटेंसेस को एक्युमुलेट करके बनाया गया है, उसके आने से पहले और मैं खाना खा चुका हूंगा. ओके, देन इन इंग्लिश ग्रामर वी कंसीडर इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. ओके, जो एक्शन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट होता है या सबसे पहले किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. ओके,
यानी कि मेन क्लॉज। और जो एक्शन बाद में होता है, ठीक है ना, वो हमारे क्या होता है, सबऑर्डिनेट, यानी कि जो डिपेंडेंट एक्शन होता है हमारा, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मीन सिंपली अगर इसको बहुत ही सिंपल वे में देखें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चुका होगा वाला सेंस जो है, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाली अगर सेंस कहीं पे आएगी तो वहां पे मैं यार क्या यूज करूंगा, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की सेंस यूज करूंगा। ओके, परफेक्ट की सेंस। मगर जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। रिपीट, आई रिपीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। डोंट बी कंफ्यूज, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। मीन्स जो मेन एक्शन है जिसके बारे में हम फोकस करें, दिस विल कंसीडर एज अ प्रिंसिपल क्लॉज, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और सेकंड एक्शन जो उस पर डिपेंडेंट है, दैट कंसीडर एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें समझना ही है किस तरह से फ्यूचर की बात चल रही है, चुका होगा तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट हम यूज करेंगे। उसके साथ जो कंट्री जो दूसरा सेंटेंस होगा वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा और डीपली देखेंगे तो हमने जब पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन था, इसमें भी फर्स्ट एक्शन प्रिंसिपल क्लॉज है, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में रखा था और उससे पहले जो एक्शन हुआ था उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखा था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट तो रखा ही गया है और जो पहले एक्शन है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया। तो दैट्स व्हाई हाउ वी फॉर्म दिस सेंटेंसेस। देखो, सबसे पहले लुक एट द प्रिंसिपल क्लॉज। मैं खाना खा चुका था, चुका हूंगा, तो आई शैल हैव टेकन फूड, दिस कंसीडर्स द फ्यूचर परफेक्ट। आई टोल्ड यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ फॉर द सेकंड वन, उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स, तो ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, why I discuss this topic here? Because in sentence formation and in closed test in the board exam, this would be as a part of your grammatical elements. एक ग्रामर एलिमेंट के रूप में ही पार्ट्स आते हैं। तो वहां पे कंफ्यूजन क्या होता है, एक पोर्शन आपका फिलअप होता है, आपको एक दूसरा फिलअप करना होता है, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट अ ब्रीफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। फर्स्ट, दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मींस द मेन क्लॉज। ओके, देन सेकंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। और हमें सिर्फ पेयरिंग का ध्यान रखना है। वेरी सिंपली है बेटा, आपको सिर्फ पेयरिंग का याद रखना है कि सर फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनेगा। उसी तरीके से हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनेगा। ओके, दिस विल बी क्लियर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट शीट वी लर्न अबाउट द लास्ट एंड द फाइनल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। Okay, welcome to the students. Now this is the last one, tense of future tense, and all of the tenses future perfect continuous tense. Okay, I told you whenever you see perfect continuous means continuous in any form of the sentence, आप continuous को किसी भी फॉर्म में देखते हैं, individually और along with the perfect, तो आप हमेशा verb की first form plus ing यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं, वेदर इट वुड बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। मींस टोटल 6। Means in the 12 tenses there are the 6 tenses in which we use verb first form plus ing. Okay, now as per the identity, we have repeated many times and this is the last portion that I have to revise about that. Listen, my dear students, this is the chart and you have to follow this chart. Okay, this is repeated for the 11 times and now it's the 12 times and it will be very easy to remind on the fingertips. ये आपको fingertips से याद हो जाएगा और आप लोगों ने अगर वीडियोस को बार बार देखा, आप रिवाइज करेंगे, चार्ट को फॉर्म करेंगे, तो it is very easy to learn. No need to be very hectic and take so load for these tenses. And one more thing about the tenses, after reading this portion we go for the different element of grammar and this is very important. I told you this is very important because after that you will be capable to do the active passives, narration and different form of grammars. Okay, now we continue this topic. Here identity means at the last of the sentence there is रहा होगा, रही होगी plus time. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। देखो, रहा होगा, रही होगी तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है, बट आई टोल्ड यू इसके अंदर टाइम भी मेंशन होगा।
ओके, तभी आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस के अंदर भी मैंने कहा था रहा, रही, आता तो है, और उसके साथ साथ टाइम मेंशन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि रहा था आएगा, मगर उसके साथ टाइम मेंशन होगा। तो व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस along with the time, it must be considered as the perfect continuous tense, whether it be present, past or future. Okay, now look at this sentence. मैं श्याम से अपना गृह कार्य कर रहा होगा, ठीक है, शाम से means we predict that somehow Mank is not preparing his homework, but I predict that he would be complete his homework after next day, means in the evening of that particular session. Now look at that, at the last of the raha hoga, along with the sham se time is mentioned. That's why it is very confirmed the future perfect continuous tense. Along with that, we have to the Mayank, and this is the affirmative portion. For that affirmative portion, what we learn, affirmative portion के लिए हमने क्या सीखा कि Mayank, okay, Mayank is the subject, will have been doing his homework since evening. Okay, subject will have been doing his homework since evening, plus here is time mentioned. In all the portion of this sentence, there is time. There is time and there is time. Okay? Time is compulsory. If we change into negative form as per the negation, मैं श्याम से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा, then what we mention here, man will have not been doing his homework since evening. Okay, if we make it the interrogative sense, then what we do, here is a question mark and the last of the sentence is starting here. Okay, then we start from will Mayank have been doing his homework since evening, and last of sign of interrogation. Okay, last sentence interrogative plus negative, क्या मैं श्याम से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा. Okay, then will Mayank not have been doing his homework since evening. Okay, I told you this would be the end of your tense. Now in the next session we learn about a different topic of English grammar, but before that you have to be very fully practice on this type of concepts. Okay, note down these tense in the chart form. I told you you have to note down all the things in a chart form, in the rectangular base. Okay, now this will gonna be the end of your tense topic. Okay, have a nice day, be safe and be happy.